बाबा बिशन दास जी एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते होंगे सी तरशनालू आदमियों की। वो कहने लगे एक पंडित ने बिल्ली पाली, उसनू बड़ा उसने प्रैक्टिकल कराया। वो बिल्ली के सिर के उत्ते जगदा दीवा रख दिंदा सीगा और जब तक कथा समाप्त ना हुंदी वो बिल्ली किसी पास इधर उधर नहीं जाती सीगी। सानू पता है भोले लोग भी संसार में बड़े होंगे है, सारे तारीफ करन लगे कि देखो जी इस दे हुक्म अंदर तां पंछी भी है कि बिल्ली किस तरह बैठी रहिंदी है। लेकिन भोलियां दे साथ चतर भी होंगे है। एक चतर इंसान ने चूहा पिंजरे च पा के लेके जा बैठा ते कपड़ा दे लिया। जब स्रोते लोग बैठे सन, कदे अखां गेड़ते सन, कदे मीचते सन, उस वेले उस चतर पुरुष ने की कीता, तो पिंजरे तो कपड़ा चक्या। जब बिल्ली ने चूहा देखा उन्हें झपट मारी, जेड़ा तेल सी डुल गया। सारे लोग परेशान होए कि अज की हो गया, अगे तो कदे बिल्ली इधर उधर हुई नहीं सी। वो जेड़ा चतर पुरुष सी वो कहने लगा देखो प्यारे, जब तक इसने चूहा नहीं देखा सी उन्ना चिकर ये भगत नहीं सी, लेकिन जब इन्हें चूहा देख लिया वो भगत बनाया दा परे चला गया। Baba Bishandas ji used to tell one very interesting story about the greed. He used to say that once there was a pandit who had a cat and he had made that cat do this practice that he would put a burning lamp on the head of the cat and she would sit there still when the pandit would tell the stories or give the lectures to the people. And this was to impress the people that even the birds and animals are in the control of that pandit, and because he wanted to attract more people, that is why he was showing this off, and he had this burning lamp on the head of the cat every day. So people would come there, and since people were very innocent, they would praise him a lot, and they were very impressed by the devotion of that cat, and they used to think that the cat is also doing the devotion. You know that along with the innocent people, sometimes some smart, some clever people also come. So once there was a clever person there, and he thought of playing this trick with the pandit. So what he did, he brought one mouse in a cage, and he covered it with a towel or something like that. And he brought it, and he also joined the audience. And the pandit started doing his story or whatever he was doing, and the cat was sitting there still with the burning lamp on her head. But after some time, when he saw that all the audience was very much enjoying the story of the pandit and everybody was very happy and content and like that, he at once removed that cloth from the cage. And when the cat saw that there was a mouse in front of her, she did not stay there still, and at once she tried to snatch the mouse. And then everybody was surprised at why this happened, because they had never seen such a thing happening before. They had always seen the cat sitting there with the burning lamp on her head, and this was the first time that why that happened. So they asked him that what was the reason. So the clever person who was there, who had played this trick, he said, well, you see, dear ones, this cat was doing the devotion as long as she had not seen the mouse. But when she saw the mouse, she forgot about her devotion. So this is the condition of those who are greedy. They seem to be doing the devotion of Lord as long as they do not see anything which they can have. But when they see that there is something which they can get, they forget about doing the devotion of God, and they run after that. They run after that greed. प्यारे बच्चों, अभी जो कहानी बाबा जी ने आपको सुनाई है, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश करूंगा। बाबा जी ने कहा कि एक पंडित ने एक बिल्ली पाली हुई थी, उसको इतनी प्रैक्टिस करा रखी थी कि वो उसके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर दिया जला के रख देता था और वो कथा करता था उस लाइट में, क्योंकि उसका स्वार्थ था। इस वजह से उसने बिल्ली को ही प्रैक्टिस करा रखी थी, और बिल्ली आराम से वहां पे उतनी देर, जितनी देर उनकी कथा चलती थी, वो बैठी रहती थी अपने सिर पे जलता हुआ दिया लेके। लोग बहुत खुश थे कि पंडित जी के वश में, तो वो कंट्रोल में है। इवन जो जानवर है वो भी उनका कहा मानते हैं। वो बहुत उनसे प्यार करते थे, बहुत उनको महान समझते थे। तो ऐसे ही उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो लोगों में बहुत ये थी कि
और पंडित जी के पास बिल्ली है और वो बहुत भक्ति करती है, और पंडित जी ने उनको बहुत उनकी दया कर रखी है कि बिल्ली को भी कंट्रोल किया हुआ है। बाबा जी ने कहा कि सत्संग में जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो भोले भाले लोग होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच में कुछ चालाक लोग भी होते हैं जो कि हमेशा कुछ ना कुछ वहां में जाके जो गलत होता है उसको वो जानते हैं और वो सही करने की कोशिश लोगों को बताने के लिए वो कुछ ना कुछ ट्रिक भी करते हैं। उसी तरीके से एक शैतान चालाक चुस्त आदमी जिसको पता था कि ये क्या ट्रिक है, तो उसने एक चूहा पकड़ के पिंजरे में बंद करके ऊपर से कपड़ा डाल के ले गया और वहां जाके वो कथा में सब लोगों के साथ ही बैठ गया। सब लोग बहुत मस्त थे, पंडित जी अपनी कथा में मस्त थे और बिल्ली सिर पे दिया लेके मस्त ही आंखें बैठी हुई थी, कभी कभी आंखें खोल के देख रही थी। इन बिटवीन उसने देखा कि अभी सब मस्त है, सबको है कि बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। उसने धीरे से पिंजरे से कपड़ा हटाया और बिल्ली ने जब आंखें खोल के देखा कि सामने चूहा है तो बिल्ली भूल गई कि वो तो भक्तनी है, उसने मेडिटेशन वो कर रही है या वो साधना कर रही है, क्योंकि उसकी दिखावे की भक्ति थी, जस्ट शो ऑफ था। बिल्ली झपट के चूहे के पिंजरे पे पड़ी, उसका जो तेल था वो गिर गया, दिया बुझ गया। बाबा जी के अनुसार, और ये सच है कि हम बच्चों के लिए खास करके, हालांकि बड़े भी इसमें काउंट होते हैं, बच्चों के लिए कई बार बच्चे बुक लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं है। जब पेरेंट्स देखते हैं तो पढ़ाई का नाटक करते हैं लेकिन वो कहीं और ही रहते हैं। इसलिए बच्चों बिल्ली नहीं बनना है, और बिल्ली भी दिखावे की शो ऑफ वाली बिल्ली नहीं बनना है। आपने अच्छे सत्संगी बनना है, बाबा जी के प्यारे बच्चे बनना है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो दिल लगा के करनी है, बिल्कुल जैसे बाबा जी चाहते हैं वैसे बच्चे तभी बनोगे जब आप दिल लगा के पढ़ाई करोगे। कुछ भी आप करते हो, बड़ों के सामने, टीचर के सामने शो मत करो। आप पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ाई करो, जो टीचर ने बोला है वो करो। नाटक नहीं करना है, ड्रामे नहीं करनी है, बहाने नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। आगे चल के ये शुरुआत में अगर बच्चे ऐसा करेंगे तो बड़े होके वो मेडिटेशन में भी यही करेंगे। सिर्फ जब संगत आई होगी, संगत के सामने भगत बन के बैठेंगे और वो अच्छे सत्संगी नहीं बन पाएंगे, अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। हम बड़ों के लिए भी है कि हम, बाबा जी हमेशा हमें टोकते रहे और बहुत बार कहते रहे। सुबह के सत्संग में भी था, और इस स्टोरी के माध्यम से हमारे लिए भी है कि जो भी हम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने गुरु के कहने अनुसार अपना मेडिटेशन करते हैं। इसमें शो ऑफ के लिए जगह ही नहीं है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप अपने आपको बेवकूफ बना रहे हो। ना तो गुरु बेवकूफ बनेंगे और ना ही आप लोगों को बेवकूफ बना सकते। संगत में एक उदाहरण बन के बैठना चाहिए, और अगर आप अच्छे से बन के बैठोगे और दिल से बैठोगे तो आप पे कभी भी बिल्ली वाले हालात नहीं पैदा होंगे कि आपको लालच आएगा या कभी मतलब हल हो गया तो आप वहां से उठ के भागेंगे नहीं। आप प्रॉपर बैठे रहेंगे और हमेशा बैठे रहेंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारी संगत में काफी टाइम हो गया, कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं है कि बिल्ली की तरह वो ड्रामा करता है, नाटक करता हो। वो दिल से बैठते हैं, रूह से बैठते हैं, और वो लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि अगर आप दिल से और अपने गुरु के कहे अनुसार बैठेंगे, गुरु का हुक्म की पालना करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अंतर में रस आएगा। और जो अंदर का रस है वो दिखावे का नहीं होता। और बाबा जी भी जो भी दया करते हैं वो दिखावा नहीं है। बाबा जी प्योर दया करते हैं। बस हमारे को सिर्फ बाबा जी की तरफ देखना है और उनके कहे अनुसार ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए।